Q. So yesterday we had conservation law and symmetries. Conservation laws and इसी का दूसरा the other way of saying is of Neofer's form. To each conservation law there is symmetry associated to it. For example, अगर हम translation करेंगे या rotation करेंगे या charge will go from one form to, so there is something which will remain, some symmetry जिसकी वजह से things will be conserved. For example, law of conservation of, for example, linear momentum हम कहते हैं symmetry और translational invariance. अगर कोई चीज रोटेशनल सिमेट्री है, इस एंगुलर मोमेंटम इज टू द रोटेशनल सिमेट्री. और इसी तरह चार्ज कंजर्वेशन इज टू सम ड्यू टू सम फेज फैक्टर. ठीक है, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर ब्रॉडली समथिंग कॉल्ड सिमेट्री कंजर्वेशन. सो एवरी कंजर्वेशन लॉ हैज सिमेट्री एसोसिएटेड विद इट. सो अगर कोई फंक्शन फाई गोज टू फाई प्राइम, फाई गोज टू, so in this process x goes to x prime. So there is something which remains constant even though you have changed the coordinates in that sense. So इसी चीज को हमने yesterday we arrived at a theorem, how the derivation of it. So I'm not going to repeat the derivation. The derivation की जो broad contours हैं हमने we took a coordinate, उसका थोड़ा सा change किया हमने x to x plus delta x mu, and then took the first order terms in the Taylor expansion. ठीक है, and then at the end we arrived at some Lagrange equation of motion. दो equations हमारे पास आ गई. In the meantime हमने also used Jacobian. How can use two elements and their derivative matrix के साथ. So at the end we arrived at an equation of this form. हमारे पास दो टर्म्स आ गई. सो इट्स एज इफ दिस टर्म सो द फर्स्ट टर्म आ गई, इसका फॉर्म एग्जैक्टली आया एज इफ वी आर सॉल्विंग द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर लैग्रांज इक्वेशन मोशन है तो ये कांस्टेंट आएगी. सो यू कैन टेक इट एज जीरो और कांस्टेंट, इट्स लैग्रांज. सो हमारे पास ये सेकंड टर्म आई. इसका इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन हमारे पास ये था कि वी जस्ट ट्राई टू से दिस एंटायर थिंग, हमने इसको एज इट्स एफ ऑफ म्यू एक्स, इट्स सॉर्ट ऑफ अ करंट, कंजर्वेशन करंट के साथ हमने इस टर्म को वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस टर्म एज इट्स अ कंजर्वेशन करंट, जिसका फॉर्म हम लैग्रांजियन को चेंज करते करते इसका फॉर्म हमारे पास आया ऐसे. माइंस इस लैग्रांजियन को वी कैन अगेन यूज दिस लैग्रांजियन का अपना फॉर्म. ये L है. L को अगेन आप लिखो इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजियन, इट विल बी सो. अब अगर हम इस चीज को हम काम करेंगे, सो इफ वी ऑल ऑफ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F. So and left hand side if it's conserved current, if it is zero, तो ये हमारे पास आएगा ऐसे d3x so it will be either equivalent to so if this
जो एंटायर टर्म है वी रोट इट एज एफ, यहां से यहां तक, तो एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो एक तो इसका स्पेस डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव है, इफ इट्स एक्स जीरो, तो कोई भी क्वांटिटी स्पेस टाइम में इन थ्री डायमेंशन -9 तो थ्री डायमेंशन में है ना d3x या d4x, x एंड t, कोई भी क्वांटिटी किसी का लैग्रेंजियन डेंसिटी जो हमारे पास है, इट विल रिमेन कंजर्व इन स्पेस एंड इन टाइम। टाइम वाला फैक्टर ये है, दिस इज करंट, एंड स्पेस वाला फैक्टर ये है। Since this is divergence of f, so हम वॉल्यूम इंटीग्रल है, we can always use वॉल्यूम इंटीग्रल को कैसे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। So at infinity future divergence of the volume integral at surface integral it will come out to be at infinity, the value of those terms will come out to be zero, है ना, in that sense. So you can say, so इसका फॉर्म हमारे पास आ गया, so इस वॉल्यूम इंटीग्रल so इसका it may vanish at infinity or at larger spaces, so it means कोई भी, so हमारे पास ये टर्म है f0 means time की term, this means what, so we have changed in your original equation हमने phi को phi plus delta r, so we changed a function from phi to phi prime by some factor of delta, ठीक है, and something remains constant. So at the end of the derivation we came up with this thing that even in time the quantity will remain conserved, at some quantity will remain conserved. So in this case it's phi rotation speed या coordinates का चेंज होना या rotation parameters का चेंज होना, इसी चीज को हम if we want to write it as each continuous transformation leads to conservation law. So each continuous transformation leads to, so this was the statement we arrived at yesterday, ठीक है। अब so this was in some general sense, so there is a whole proof attached to it which will take more than few steps and some amount of algebra and some amount of motivation to go through each step. Now in today's class what we are going to do is we are going to see of the conservation laws of C. So in today's class what we are going to see, we are going to एक होता है जनरल रिजल्ट हमें लिए, अब we are going to concretize in some specific cases, हम देखते हैं पर्टिकुलर केस में how does it hold. So you can have invariance under translation, invariance under rotation, invariance under charge conservation, ठीक है, so these are different cases. So for example in first case we want to see invariance under translation, the first case. So under so in your earlier classes आपने classical mechanics में पढ़ा होगा the translational symmetry जो है which get conservation of linear momentum, rotational symmetry से conservation of angular momentum, ठीक है। So you have to see the same thing because we are studying these entire systems under the subject called classical field theories, because we have to get it later. If there are classical symmetries, there are quantum symmetries associated with those field theories. So those classical symmetries हमारे पास ये J है ना, ये हमने यहाँ कंजर्वेशन के सब को हमने जिस करंट के साथ this factor को हमने in terms of conservation of current लिया. So we have to see what remains conserved.
and what doesn't remain conserved. तो हमारे पास what we can add to conserving a given quantity. So a translation में है ये, so x u plus epsilon. So you have a quantity, you have translation, जिसका हम करते हैं ना x is equal to x plus a, some constant, या x dot is equal to x dot plus a, है ना, velocity है, velocity, this is reference frame में. So अगर हमारे पास translation है and it should follow from earlier classes from homogeneity of space. So it should follow from homogeneity of oh sorry, so actually I had to keep it, so I'll keep it this जो कंजर्वेशन करंट जिसको हमने F के साथ डिनोट किया था, इसको मैं यहाँ ऐसे रखूंगा. हमारे पास दो टर्म्स आई पिछले वाले से. एक टर्म was the Lagrange equation of motion, this was the second term. तो इसको हमने एज ए क्वांटिटी, कंजर्व क्वांटिटी लिया, ठीक है. तो अब हमारे पास, सो इस चीज को हम सो वी हैव टू सी, we say that the shape of the fields will not remain changed. For example, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है phi x goes to phi x prime, ठीक है, x prime में भी this. अब क्या करेंगे कुछ चीज, so you assume that the frame of reference also got rotated ऐसे, such that the distance between 2 points है that will remain same, ठीक है. So you assume it that way. So अगर ये है तो हम क्या करेंगे काम, so जो local variation है we say should be equivalent to phi r x, and local variation is conserved. Neutral current, इसी को neutral current कहते हैं. What remains current conserved in a given transformation. अब जो neutral current है इसका फॉर्म हम लेंगे ऐसे. So we are going to write it as a second order tensor. Second order, एक first order tensor भी हो सकता है, second order tensor of third rank और higher rank, क्योंकि हमारे पास ये है. So we are going to write this entire quantity जो हमारे पास यहाँ पर हमने in terms of current डिनोट किया था. हमारे पास दो टर्म आई थी, एक लैग्रांज इक्वेशन की टर्म आई थी, एक ये वाली टर्म आई थी. लैग्रांज इक्वेशन की टर्म को हमने, क्योंकि इट विल कम आउट एज एन कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी टुक इट एज 0. द अदर टर्म विल डिटरमाइन द करंट. अब इस करंट को फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी वी आर सेइंग दैट इसको हमने इन टर्म्स ऑफ थीटा म्यू डिनोट किया, ठीक है. एंड इस थीटा म्यू इफ इट्स कंजर्व इट विल कम आउट टू बी 0 और सम कांस्टेंट, ठीक है, इन दैट सेंस. सो थीटा म्यू शुड बेसिकली बी इक्वल टू and mu goes from, so it will imply conserved quantities, and the conserved quantities can be shabash, can be energy,
एंड मोमेंटम ऑफ वेक्टर फील्ड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोमेंटम लेंगे, मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये ना mc स्क्वायर, सी कट जाएगा, तो इट्स अगेन p, इट्स ऑल्सो p, इट्स p नॉट px py pz। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू बी अब ये थीटा है ना, थीटा थीटा म्यू ऊपर भी हो सकता है, अगर ऊपर करेंगे म्यू 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 मीन्स स्पेस टाइम, जीरो है ना, टाइम है ना, 0x 0y 0z, so on and so forth, 0 in that sense, so it will come out to be। so अब ये है कि जो ये टेंसर है ना, it may or may not be symmetric, this theta mu, so इसको हमने कहा it's a symmetric tensor, so it's not always symmetric, so there can be exercises where if it's not symmetric, it turns out to be anti-symmetric, we have to add some quantities, some terms to it to make it symmetric, वो अपने आप में कोई एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन हो सकता है। सो हमारे पास जो ये है ना, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी, if it is not symmetric, how can you show it to be symmetric? You have to add some terms or subtract some terms to make it symmetric, or जो भी है, depends upon problem tools। ठीक है, so अगर ये symmetric है या symmetric नहीं है, so now we are going to concentrate on that। so अगर ये so if it's symmetric, or so it can be like this। ठीक है, so by suitably adding। अब ये है क्वेश्चन, ये है कि how can arrive at something called Lorentz invariance means what? Lorentz invariance means एक होता है, if you remember हमने velocity of light is the upper bound, जो लाइट कोन है ना हमारे पास ऐसे, so event will remain within that light cone। अगर यहाँ से स्पीड ऑफ ये है ना, ये कांस्टेंट, अगर एक t है, ये x है, x by t जो होगा रेशो वो 45 डिग्री होगा, है ना। इट विल अगर ये c है ना, तो इट विल ऑल द इवेंट्स विल लाई फॉरवर्ड इस कोण में रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे इस कोण में, इसका आप tan निकालोगे तो x by t जो होगा इट शुड बी tan 45 डिग्री। इफ यू रिमेंबर हमने जो इक्वेशन साइन एंड कॉस में की थी ना, to determine Lorentz invariant, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म आ रहा है, so that's a separate exercise। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अगर ये Lorentz invariant है, तो how can you write it? तो Lorentz invariance के लिए we have to get something called rotational symmetry। एक हो गया ट्रांसलेशन, दूसरा है क्या रोटेशन। ट्रांसलेशन विदाउट रोटेशन इसको क्या कहते हैं, बूस्ट्स, है ना, तो इट्स ट्रांसलेटिंग बट विदाउट रोटेटिंग, द अदर थिंग इज इट्स रोटेटिंग विदाउट ट्रांसलेटिंग। ठीक है, सो एक वो बूस्ट्स कहते हैं, और वी कैन हैव समथिंग मिक्स्ड स्पेशो टेम्पोरल एस्पेक्ट्स, स्पेस में भी कर रहा है एंड टाइम में भी कोई चीज चेंज हो रहा है। ठीक है, एक हो गया टाइम के साथ सिमेट्री एसोसिएटेड है, जो अभी हमने जो मतलब समथिंग कंजर्व्ड, a quantity remains conserved irrespective of time, going from time t to
दूसरा क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व गोइंग फ्रॉम 5x to 5x प्राइम। तीसरा हो गया द क्वांटिटी रिमेन कंजर्व इन स्पेस एज वेल एज टाइम। So quantity going from one state reference frame to another reference frame. So there can be space change only, there can be time change only, or there can be mixed spatio-temporal aspects. उसमें हमको देखना है कि लॉरेंस इनवेरिएंस कैसे हम प्रिजर्व करेंगे कोई सिस्टम, इट गोज फ्रॉम सिस्टम ए टू सिस्टम बी। सो अगर हमारे पास अब अगर ये है कि रोटेशनल सिमेट्री है, इट विल मूव लाइक दिस, है ना, उसमें स्पेस का एस्पेक्ट भी आएगा, टाइम का भी एस्पेक्ट आएगा, है ना, डाइवर्जेंस। तो हम क्या करेंगे, एक्स म्यू प्राइम विल गो इनटू एक्स म्यू प्लस दिस इज बेसिकली ओमेगा, ओमेगा म्यू म्यू। अब क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमल चेंज इन रोटेशनल सिमेट्री है, इट्स डेल्टा ओमेगा म्यू म्यू। एंड इफ इट्स एंटीसिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2, यू कैन से एंटीसिमेट्रिक टेंसर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, है ना, म्यू म्यू, इट्स माइनस ऑफ ये म्यू म्यू है, ये म्यू यहां आएगा म्यू। सो वी हैव चेंज द इंडिसेस दिस टू दिस। अब हमारे पास ये है कि सर मिनिकॉव्स्की स्पेस में, फॉर एग्जांपल अगर आपने इन क्लासेस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा, जो स्पेस टाइम मैनिफोल्ड है ना, स्पेस टाइम मैनिफोल्ड बिटवीन टू इंटरवल्स, इट विल रिमेन प्रिजर्व, ठीक है, अंडर स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एक लोरेंजन मैनिफोल्ड होता है फ्रॉम वन मैनिफोल्ड टू इट मैप्स टू अनदर मैनिफोल्ड। अब लोरेंजन मैनिफोल्ड की ज्योमेट्री जो होती है वो समटाइम्स सिंपल नहीं होती है। जब आप इंटरवल को डिफाइन करते हैं ना ऐसे, x इक्वल टू x0 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, इसको प्लस करो या माइनस करो इन तीन को, तो इसको ये टाइम कोऑर्डिनेट है ये, तो ये मैनिफोल्ड बन रहा है लोरेंज ज्योमेट्रिकली। आप इसको आप देखो कैसे बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो अगर ये डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरवल्स है x म्यू x म्यू, इट शुड बी कंजर्व, इट शुड कम आउट टू बी, इसी को बेसिकली हम कैसे लिखते हैं, एल बी एच स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं। दिस इज द मेट्रिक एलिमेंट, इसी को एक्स म्यू के साथ डिनोट करेंगे, है ना। एक्स म्यू क्या आएगा, x0 x1 2 3 0 1 2 3, ये टाइम का डेरिवेटिव है, ये स्पेस के डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव स्पेस डेरिवेटिव, तो इसके 16 टर्म्स आएंगे, ठीक है। सो ये जो हमारे पास आएगा, सो वी हैव टू फाइंड अब ये एक्स म्यू है, तो एक्स म्यू के बदले आप ये लिखो, और एक्स म्यू के बदले भी ये लिखो, बट द इंडिसेस आर डाउन इन द सेकंड टर्म। ये लाइन एलिमेंट है, मेट्रिक एलिमेंट विच शुड रिमेन प्रिजर्व, जिस तरह हम कहते हैं ना, समथिंग इन मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, समथिंग कॉल्ड होम्योमॉर्फिक, एक होता है ना अलजेब्रा प्रिजर्विंग। सो इफ यू मेक सम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर, what is that quantity which remains preserved? So in that sense, so इसका क्या आएगा, इसको हम we are going to write, we have changed this to this, थोड़ा सा चेंज हो गया ना रोटेशनल इसकी, एंड इसका अब इसको थोड़ा सा हम बुक फ्रॉम बुक हियर समटाइम्स चेंज म्यू म्यू को सिग्मा के साथ इसने चेंज किया है या टाउ के साथ चेंज किया है, ओनली टू शो ये दो अलग ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, बट देयर इज अ वे टू चेंज इट। आप देखो इसमें आप कैसे करो, यू हैव टू मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो पहली टर्म क्या होगी, शाबाश, एक्स म्यू एक्स म्यू,
ठीक है, दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करो, सो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सो इट विल बी मोर और लेस एंड वन ऑफ द फैक्टर्स, इसमें अगर न्यू इसमें आप करोगे, यू डू एट प्लेस, इसमें एक टर्म इट विल, इसमें 4 टर्म्स में एक टर्म में द इंडिसेस विल कंट्रैक्ट, इंडिसेस विल कंट्रैक्ट, वो टर्म नहीं रहेगी, एंड 2 टर्म्स का यहां पर एडिशन हो, लाइक दिस, ठीक है। यू कैन डू इट हियर आल्सो, थोड़ा सा आप इसको करो, अगर आप इसको एक बार करोगे इसके साथ, ठीक है, ये न्यू कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें यहां हो जाएगा न्यू एंड न्यू यहां कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस। फर्दर इफ यू वांट टू, यू कैन सी इट, इसको आप एक्स म्यू यहां पर है ना, ये ट्वाइस डेल्टा ओमेगा म्यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 बार है ना, डेल्टा ओमेगा म्यू प्लस डेल्टा ओमेगा, सो इफ इट्स सिमेट्रिक, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू, अगर एंटी सिमेट्रिक हुआ तो माइनस, ये माइनस आएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट इट ट्वाइस के बदले आप वो भी लिख सकते हो। So we have seen, so which leads to the requirement of this term, that it's antisymmetric tensor, ठीक है। So we have done transformation यहाँ पर इसको, and we have done this transformation. At the end we arrive at a requirement which is equivalent to this thing. अगर ये न्यू हो जाएगा तो ये प्लस आएगा, सो यू कैन सी इट लाइक दैट। वन सेकेंड, टेक 10 मिनट्स। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है, whatever the transformation is, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी की है, we'll take a general answers। answers मैंने पहले भी कहा था, answers किसको कहते हैं? answers is an assumption which we assume it can be true as a hunch, but once we are going to prove it, it will come out to be true। good, तो answers ये है, we are going to take a general dependence of phi of r prime x prime goes to phi of r x plus so we are going to change phi prime goes to this under some rotational transformation, under some where this I mu जो है, they are the generators of the Lorentz transformation in that sense, and these are the elements of matrix। so if you remember हमने किया था ना यहाँ पर, once we solved Dirac equation, एक साइड से यहाँ x1 x0 x1 x2 x3
तो यहाँ पर फिर मैट्रिक्स आया था बड़ा 4 क्रॉस 2, फिर यहाँ पर आई थी टर्म्स, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर cos टर्म्स आई, cos 0 0 0 0 0, this was those 4 क्रॉस 2. So you can say, you can now represent these generators as elements of those matrices in that sense. And such that I mu इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अब इसमें भी यह है कि there are various ways you can arrive at it. mu है ना, इसमें आएगा 0 1 0 2 0 3 है ना, 1 0 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 3 डिफरेंट स्पेस टाइम इंडेक्सेस। अब इसमें है समटाइम्स अगर सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक में ये है ना, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 एक्स वाई यह होगा, ये वाई एक्स होगा, है ना, वाई जेड होगा, यहाँ जेड वाई होगा, ठीक है। सो यू हैव नॉट टू रिपीट देम। अगर 16 इक्वेशन है, 16 माइनस 4 कांस्टेंट को 12 का भी 6 ही रहेगी, because x y is equal to, so it will reduce in that sense. So you have to see your जो symbols mu का जो है ना combination, it will be more or less like 0 1 0 2, and so they will exhaust all possibilities. And for the sake of what I should say completeness, आप ये अपनी जगह आप इसको थोड़ा सा, तो ये होमवर्क है। इसका रोटेशनल सिमेट्री जो है, यू कैन हैव, इसका फॉर्म ऐसे आएगा, तो नॉर्मली इसका जो प्रॉपर है ना, ये मैथमेटिक्स समथिंग कॉल्ड ली अलजेब्रा। ली अलजेब्रा का आप ली अलजेब्रा जो है ना, हाउ कैन, इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे है, जब हमने डिफाइन किया था ना, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा। तो ली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का कोई अलजेब्रा होता है, and that algebra satisfies some geometry, and that geometry basically satisfies this Lorentzian algebra, which is satisfied by जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यूटन करंट सिग्निफिकेंट, ठीक है, in that sense. So and that satisfies this commutative relation. इसको आप अपनी जगह प्रूव कर रहे हैं, ये करेगा कि नहीं करेगा, हमको ये नहीं कहना। मेरा कहने का मकसद है जो लोरेंज करंट है ना, एफ म्यू, ये इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है, देन you can write this Lorentz current in terms of this I mu as where theta mu is that energy momentum tensor, ठीक है। So we can write this F mu as energy momentum tensor. One second. Again, ये थीटा म्यू है ना, एंटीसिमेट्रिक टेंसर। If you want to write it as
Okay, we just stop it there. Tomorrow हम थोड़ा सा यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है? So there are 2-3 steps. You just stop.